The offences are under section 498A related to section 34 of IPC. I am 11 years of marriage. The allegations have been leveled against the present appellants, petitioners, Milord. On the date of incident, 3 days prior of the date of incident, the respondent, the complainant was out of India. And he was not in India. शादी के बाद मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, पैसे की मांग करके मायके से लाने बोलते हैं तथा किसी तरह से 2 लाख रुपए दी थी। एलिगेशन या कोई भी प्राइमरी एफआईआर नहीं है। 12 साल से अगर ऐसा हो रहा था, एक सूचना, एक एफआईआर, आप ये बताओ, एक एलिगेशन। आप ये बताओ, ऐसा कोई जजमेंट बताओ जिससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो कि भाई अगर 12 साल पहले घटना अगर हुई तो आपको मालूम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या चलता है। भाई मारपीट की घटना जो है, मारपीट की घटना 18/9/2016 की है, पहले की है। आप पढ़ो जरा, कहाँ लिखा है पहले की घटना। कंप्लेन पढ़ देते। अरे पुरानी घटनाओं को भी तो लिखी है ना। पुरानी घटनाओं को नहीं बोल रही है, वो बोल रही है कि 18/9/2016 को मारपीट नो की नो गई। नो फिर क्या ये क्या होता है 498 में एक ही दिन की घटना पे होता है क्या? एक ही दिन की घटना के जिक्र नहीं कंप्लेंट नहीं किया। नहीं आप सुनो तो सही। पहले हमको ये बताइए, पहले की घटना अगर क्या 498 में कवर नहीं कर सकते क्या? Milord, my humble submission, Yes. they were living separate since last 10 years, Milord. यस, मतलब घटना के 4 साल पहले से वो अलग रह रहे हैं। तो जो व्हीकल मैंने उन्हें खरीद के 10 लाख का गिफ्ट किया है, वो उसके अगेंस्ट वो कह रही हैं कि मैंने 4 लाख रुपए उनसे मांगे। अननेसेसरी का प्रोसीडिंग्स को हम नहीं अलाउ करेंगे। अगर नहीं है तो किसी का केस नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, और अगर है तो फिर कभी क्वेश्चन नहीं होगा। Yes, for punishment of FIR and charge sheet. हाँ, The offences are under section 498A related to section 34 of IPC. I am the elder brother of husband and the husband. They are the petitioner here. Milord, the FIR is been made before the police station at police station Bhilai 3 on 18/9/2016. Date of incident is 18/9/16, whereas the FIR was made on 24/4/2017. Marriage have been taking place on 16/2/2005. More than Milord, 11 years of marriage. The allegations have been leveled against the present appellants, petitioners, Milord. Milord, my respectful submission is that, Milord, the charge sheet have been filed. Milord, may now please come to Milord, directly came to Milord Annexure P2. इनकी कोई बच्चे वगैरह नहीं है क्या? 2 बच्चे, क्या हुआ? दोनों along with mother. हाँ, And she was living separately since 2011-12. 11-12. Milord, What about whether they are going for mutual divorce? Milord, till today, Milord, I have not received any instruction regarding this. Yes, Yes, Lord, Milord, I have not filed any divorce application before any court, Lord. you are living for last 10 years. Approximately 8 years. Then, when the petition was filed, complaint was filed, Milord, complaint. when the petition was filed, Milord? 2000 तो स्टे केस में जी, इसीलिए 5 साल तो हो गए स्टे से। Milord, please have a look of Annexure A2, Milord. A2, that is on page number 30. On the date of incident, 3 days prior of the date of incident, the respondent, the complainant was out of India. And he was not in India. So the probability of committing the offense is nil. Milord, may have a look of this ticket details and the visa. And page number 31. This is the visa. And अरे Milord, भाई इनकी on the date of incident, he ये was at कंप्लेंट Bombay. को तो पढ़ो आप, जी, कंप्लेंट पढ़ो ना पहले। मैं पढ़ देता हूँ Milord. हाँ, फिर Milord, may बताना। kindly have a look of the complaint and Milord, the FIR, Milord, or complaint at page number 12, Milord. हाँ पढ़िए उसको। Milord, मैं निवेदन करती हूँ कि मैं Milord, the complainant, पति सो उम्र 31 वर्ष, निवासी पुराने भिलाई में रहने वाली हूँ। मेरी शादी 16/2/2005 को पंचशील नगर में हुई थी। जी जगमोहन राव के साथ सामाजिक परिजनों
की उपस्थिति में हुई थी। मेरे पति विद्युत रायपुर लाइन में पदस्थ हैं। शादी के बाद मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। पैसे की मांग करके मायके से लाने बोलते हैं तथा किसी तरह से 2 लाख रुपए दी थी तथा मेरे शरीर पर पहने गहने 30 तोला सोना को गिरवी रखा था तथा मेरे जेठ जी जगन्नाथ राव तथा मेरे पति बार बार रुपए पैसे की मांग कर मुझे मारपीट और गाली गलौज करते कर रुपए पैसों की मांग कर मुझे तथा मेरे बच्चों को आत्महत्या कर लेने के लिए कहते थे तथा घर से निकाल दिए। जो मैं अपने माँ के पास पुरीना में रह रही हूँ, यह यहाँ पर भी आकर मुझे तथा मेरी माँ को रुपए पैसे देने की मांग कर मारपीट कर लेने की बात कहते रहते थे। 8/9/2016 को दोनों मेरे घर पे पुरेना में आकर दिन करीब 12 बजे आकर मारपीट करने लगे। तलाक लेने का दबाव बनाने लगे। मेरी दोनों बच्चियों के साथ भी मारपीट की घटना को मेरी माँ महालक्ष्मी एवं भाई राजेश एवं लड़की जी पार्नो श्री देखे हैं। मेरी शादी के समय मोटरसाइकिल, जेवर, अलमारी एवं रसोई दिया थी। मतलब थोड़ा सा ये इसके उपरांत भी मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज और आत्महत्या करने बोलते हैं, जिससे मैं परेशान हो चुकी हूँ। महिला थाने में शिकायत की थी किंतु नहीं माने, जिसे मैं लाचार होकर शिकायत पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। FIR दर्ज की जावे। दिस इज द कंप्लेंट। Subsequently the FIR has been registered, Miller. The FIR has page number. How under 482 we can appreciate this fact? Miller, Because the basic question which you have to reply. Miller, because the allegations are omnibus, Miller. Why? These are vague. Because Miller, may kindly have a look of page number. अच्छा ये बताओ, मारपीट करते थे उसको ओमनीबस कैसे माना गया? इसलिए क्योंकि इसका कोई भी एलिगेशन या कोई भी प्राइमरी FIR नहीं है। 12 साल से अगर ऐसा हो रहा था, एक सूचना, एक FIR, आप ये बताओ, एक एलिगेशन। आप ये बताओ, ऐसा कोई जजमेंट बताओ जिससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो कि भाई अगर 12 साल पहले घटना अगर हुई तो आपको मालूम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या चलता है? और दे आर सेइंग कि इन दी वुमेन्स अगेंस्ट ऑफेंस नॉर्मली नो वन वांट टू शो टू मेक अ कंप्लेंट टू दी पुलिस, दे वांट टू escape their to save their family life. They are trying here is the, in India. See, in India, the working and climate conditions are altogether different. Living standard of the family is altogether different. Here, everybody is trying to accommodate. Once the accommodation period is over, then only this FIR is lodged. And you must see what the order of the Honorable Supreme Court in recently, while granting interim anticipatory bail to husband. What the Honorable Supreme Court has said very recently. In the recent case of Abhishek versus East of Madhya Pradesh, this is recent case, my lord. In fact, it is published day before yesterday. The Honorable Apex Court has dealt with the similar situation, my lord. तो हमको ये बताओ, इस चीज को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं आज साक्ष्य के बिना? सी आप लोग समझिए, 482 में हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम हर जगह यूज करके तलवार चला दें। Where we have to in use, this case, my lord, when he was not, when the complainant was not in India on the respective date when the offence is said to be committed. How you say? My lord, kindly see the page number. My lord, kindly see the page number 31 and 32. She was अब इनकी जरा FIR को जरा फिर से पढ़िए। My lord, भाई ये FIR की जो कंप्लेंट, I will read the FIR, my lord. My lord, may kindly come to page number 12. This is the copy of FIR. I'll read the entire contents of the FIR. हाँ, नहीं FIR को बाद में पढ़ो, पहले तो कंप्लेंट को पढ़ो। कंप्लेंट पढ़ देता हूँ, my lord. हाँ, उसमें कहा लिखा है कि और कौन सी तारीख में विदेश में थी वो? My lord, he was at Sharjah, my lord. This is the copy of ticket 20th August 2016 to 21st August 2016 and the visa is. अरे भाई मारपीट की घटना जो है, मारपीट की घटना 18/9/2016 की है। पहले की है, आप पढ़ो जरा। कहाँ लिखा है पहले की घटना? कंप्लेंट पढ़ देते। अरे पुरानी घटनाओं को भी तो लिखी है ना। पुरानी घटनाओं को नहीं बोल रही है, वो बोल रही है कि 18/9/2016 को मारपीट की गई। फिर से पढ़िए। I may read the complaint first. Yes, पढ़ो। I may read the complaint first. This is the incident of 18/6/2000. घटना के बारे में बोल रही है ना?
जी 18/6/2016 की। सुनो तो सही। मिलट जिस दिन वो अरे क्या FIR ये क्या होता है 498 में एक ही दिन की घटना पे होता है क्या? एक ही दिन की घटना के जिक्र नहीं उन्होंने नहीं कंप्लेंट नहीं में किया नहीं है। नहीं 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 आप सुनो तो सही। पहले हमको ये बताइए पहले की घटना अगर क्या 498 में कवर नहीं कर सकते क्या? मिलट कवर तो वो डे 1 से कवर हो जाएगा, फिर- लेकिन क्या फिर- क्या उस डे क्या- 1 की घटना को 12 साल बाद बताया भाई जाएगा? उसने वहां पे डेट नहीं डाली है लेकिन ये बात आप अगर सुनो तो उन्होंने सही। डेट मेंशन की है, स्पेसिफिक डेट मेंशन की है, अच्छा ठीक है आप चलो तो आप हमसे बहुत मिलट नहीं आई एम करते जस्ट हम्बल सबमिटिंग, मिलट humbly submitting. नो नो यू सबमिट इट नो प्रॉब्लम। Now, Milord, my humble submission, Yes. they were living separate since last 10 years, Milord. यस मतलब घटना के 4 साल पहले से वो अलग रह रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डेट ऑफ इंसिडेंट है वो 18/6/2019 को बताया गया, जिस दिन दी पिटिशनर्स वेयर प्रेजेंट इन दी हाउस ऑफ दी कंप्लेनेंट, जहां उसके साथ मारपीट हुई, ऐसा एलिगेशन कंप्लेंट में आया। यस नाउ मिलट में काइंडली सी दी FIR, मिलट कंटेंट्स ऑफ द FIR, दैट इज एट पेज नंबर 11। ये हवाई जहाज में कौन किया है? दी कंप्लेनेंट कंप्लेन गई है। मालूम, ये कौन उसी है का टिकट है, ये पिटिशनर नहीं गया, कंप्लेनेंट की टिकट है, कंप्लेनेंट का वीजा है, और कंप्लेनेंट का बॉम्बे से बिलासपुर रायपुर तक का भी टिकट है। हाँ ये ताकि कब ये का भी- है? ये कब का है? मालट में काइंडली सी एट मतलब ये जो पहला वीजा है ये 20 जुलाई से लेके 17 सितंबर 2016 का है। ठीक और जो यानी जुलाई 20 जुलाई से कभी भी जा सकते है ना? उस एक महीने में आ जा सकते हैं। हाँ ठीक जी, और जो बॉम्बे की टिकट है हाँ। दैट इज ऑन 20th सितंबर से लेके 20th सितंबर, एंड दैट टिकट वाज बुक ऑन 19th सितंबर, मींस ये 19 सितंबर। वाह बुक डेट ऑफ जर्नी कहाँ लिखा है भाई बताओ तो जरा हमको तो नहीं मालूम। पेज नंबर 32 में हाँ जर्नी डेट ऑफ जर्नी क्या लिखा है बताओ। ये बुक का पीरियड क्या होता है और डेट ऑफ जर्नी का क्या मतलब दोनों होता है? बुकिंग की जो डेट है, वाह, वाह। मिलट एक मिनट देख लें, पेज नंबर 32 बढ़िया देखिए बात। मिलट, ऊपर लिखा हुआ है डेट ऑफ बुकिंग ठीक डेट ऑफ बुकिंग क्या लिखा है? 19 सितंबर 2016 5:21 शाम को, पेज नंबर पेज नंबर 32 मिलट। अच्छा लॉन्ग टर्म विजिट सिंगल एंट्री टूरिस्ट ठीक जी, टूरिस्ट और डेट ऑफ जो ये है जर्नी है, फ्लाइट डिटेल्स डली है, ये फ्लाइट उस समय उड़ी, उसकी डिटेल्स डली है 20 सितंबर 2016 20 9 दिसंबर ना? जी 9:25 सुबह। हवाई जहाज में 20 तारीख को बैठी होगी ना? जी, ठीक प्राइमा फेसी मिलट कि जो ऑफेंस जिसकी FIR इन्होंने 24/4/2017 को की है। एक तो FIR जो है दैट इज ऑलरेडी डिलेड बाय 7 months, वो उन्होंने 18/9 की जगह 24/4/2017 को की है। ठीक मालूम नाउ मिलट सो फार एज दी डिमांड ऑफ मनी इज कंसर्न, मालूम में काइंडली हैव अ लुक ऑफ पेज नंबर 34 मिलट, दैट इज अ particulars of a vehicle. Why you have shown this income tax record? My lord, income tax record, I have filed this income tax record because on in that period of time, my lord, the court was also ordinarily put a question ki why the vehicle was registered in the name. तो उनकी इनकम कितनी थी जो उन्होंने व्हीकल खरीदी, तो वो बताने के लिए मैंने उनका पर्टिकुलर्स लगाया कि वो 9,000 रुपए कमाती थी, एक में उन्होंने 14,000 रुपए लिखा और 280 रुपए का इनकम टैक्स भरा। तो 20 लाख का उनको 10 लाख का उनको व्हीकल खरीदने के लिए लोन नहीं मिलेगा। तो लोन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द HDFC बैंक, दैट इज मेंशन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द परचेज ऑर्डर, व्हीकल ऑर्डर, दैट इज मेंशन इन पेज नंबर 34 मिलर। Yes. तो जो व्हीकल मैंने उन्हें खरीद के 10 लाख का गिफ्ट किया है, वो उसके अगेंस्ट वो कह रही कि मैंने 4 लाख रुपए उनसे मांगे। तो दिस इज हाउ द एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। 4 लाख रुपए के लिए मैं 10 लाख का उनको व्हीकल खरीद के रहा हूं, दैट इज परचेज इन द ईयर 2015 और कंप्लेंट वाज मेड इन द 2016 एंड 17। दिस व्हीकल इज परचेज्ड ऑन मिलर्ड 27/10/2015। Yes. Yes, Mr. What is your yes? Tell us Better before whether she has gone to Sharjah on that particular date. You tell us. My lord, I have only just submission that after they stay, the evidence has been stayed, my lord, and I cannot say anything. No, please tell us. And whether the past incident will be treated in the commission of offense or not. You suggest on 2 points. If it includes the whether 498
will cover the past incident or the particular date of event is necessary. You tell us 2 points. And whether she was at foreign or she has gone to Sharjah or not. The unnecessary का proceedings को हम नहीं अलाउ करेंगे. अगर नहीं है तो किसी का केस नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, और अगर है तो फिर कभी क्वेश्चन नहीं होगा, फिर कन्विक्शन भी होगा. इस चीज को आप लोग बहस कीजिएगा, ये सोच के दोनों पक्ष. अगर जरा भी केस में दाएं बाएं दिखेगा तब मैं उठा के खारिज कर दूंगा, और फिर वो सीधा डिसमिसल और फिर कन्विक्शन की तरफ ले जाएगा.